हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के फर्स्ट यूनिट के सेकेंड टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हिस्ट्री जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है। अगर इन जनरल में बात करूं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो प्लेस है, वो जगह है जहां पे कोई भी ड्रग का रॉ फॉर्म को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और उसे किसी भी फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट किया जाता है फॉलोइंग सम ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशंस टू गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट। So, as here is the definition for pharmaceutical industry, that is, pharmaceutical industry discovers, develops, produces or market pharmaceutical drugs for medication to be administered to the patients or self-administered with the aim to cure them, vaccinate them and alleviate symptoms. Pharmaceutical companies may deal with the generic or brand medications and medical devices. Pharmaceutical companies generic medicines as well as brand medicines के साथ deal करती है. They are subject to a variety of laws and regulations that the patenting or testing of drugs. So this was the definition for pharmaceutical industry. Moving ahead with the history, अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में बात करें, ये तब से शुरू हुआ है जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, जब मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज बहुत ही डोमिनेटिंग होती थी। उस समय से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने कितने अपने आप को ग्रोथ किया है, कितना इवोल्यूशन हुआ है उसका, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। From the time of independence, when the industry was being dominated by multinational corporations, the Indian pharmaceutical industries has covered a long way. It has grown remarkably and established itself as a major supplier of generic medicines as well as new formulations. Under a favorable policy regime over the years, the Indian pharmaceutical industry in such a position that it not only fulfills the domestic demands but also provides various destinations including the developed markets of USA, Europe and Japan with significant volume of pharmaceutical products. आज हम इस पोजीशन में हैं कि ना कि हम सिर्फ अपने डोमेस्टिक डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं बट वी आर अ गुड सप्लायर्स टू द डेवलप्ड मार्केट्स आल्सो। मैंने टेबुलर फॉर्म में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ग्रोथ और इवोल्यूशन को समझाने की कोशिश की है। सो लेट्स सी, दिस इज द ईयर एंड इट इज द हिस्ट्री व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दैट ईयर। सो इन 1901 Bengal Chemical and Pharmaceutical Works in Calcutta was established by Professor P.C. Roy. In 1907 Alembic Chemical Work was set up in Barodara. In 1922, introduction to urea stabimin for the treatment of काला अज़र। काला अज़र एक डिसीज है जिसके ट्रीटमेंट के लिए यूरिया स्टैबिमिन को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम इन 1922। 1930, वैक्सीन, सेरा, एनेस्थेटिक लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड अदर सिंपल ड्रग्स was developed based on the coal tar distillation in the country. In 1930, first time vaccine, sera, anesthetics develop हुए थे through coal tar distillation techniques in the country. In 1942, Council of Scientific and Industrial Research was registered. In 1954, Hindustan Antibiotic Limited was set up to increase the production of antibiotics like penicillin and streptomycin. 1954 में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ने इंक्रीज किया था प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन 1970 स्पेशल प्रोविजन गिवन इन पेटेंट एक्ट
में स्पेशल प्रोविजंस कुछ ऐड हुए थे इन 1970. In 1980 to 1990 number of pharmaceutical industries were set up. बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज 1980 to 1990 में सेटअप हुए थे इंडिया में. फार्मास्यूटिकल, अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया में, तो the Indian pharmaceutical industry is the world third largest by volume and 14th largest in terms of value. Today it is the one of the largest and most advanced among the developing country. हमारा इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बाय वॉल्यूम एंड 14 लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज. इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ UFDA अप्रूव्ड प्लांट्स outside USA. India is the largest provider of generic medicines globally. Major segments of pharmaceutical industries are generic drugs, OTC medicines, API bulk drugs, vaccines, contract research, manufacturing, biosimilars and biologics. India generic drugs, OTC, over-the-counter medicines, API, active pharmaceutical ingredients and bulk drugs, vaccines के largest providers में से एक है globally. Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad are the major hubs of pharmaceutical industries in India. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना PMBJP, ये योजना 2008 में established हुई थी to let the generic medicines to be sold in the affordable prices. इसका मेन एम ये था कि जेनरिक मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइसेस में सारे जिनको रिक्वायर्ड है, जिनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, उनको प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, इन अफोर्डेबल प्राइसेस. जेनरिक मेडिसिन की प्राइसेस जेनरिक मेडिसिन की सेम सेफ्टी होती है, एफिकेसी होती है एज कम्पेयर टू ब्रांड मेडिसिन, बट ये ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए नहीं जाते हैं और इनके में टैक्सेस कम लगते हैं, इसीलिए इन्हें कम प्राइसेस में सेल किया जाता है. मूविंग अहेड विथ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. अगर हम फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशंस के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये भी मैंने टेबुलर फॉर्म में समझाने की कोशिश की है. सो लेट्स स्टार्ट. इन 1920 द कैलकाटा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन रिलीज्ड which changed its name to Bengal Chemist and Druggist Association in 1926. Bengal Chemist and Druggist Association कई बुक्स में 1926 दिया है, कई में 1920 दिया है और कई में 1901 दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. ये कैलकाटा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का नाम इसे चेंज करके अभी बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन 1926 से हो गया है. इन 1923 फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट का, जिसे बनाया गया था, जिसका नाम बाद में चेंज होकर फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गया इन 1925. इन 1930 ड्रग एनक्वायरी कमेटी, चोपड़ा कमेटी एंड डेंजरस ड्रग एक्ट अंडर द चेयरमैन ऑफ कर्नल RN चोपड़ा वॉज केम. ड्रग एनक्वायरी कमेटी आई थी इन 1930. In 1935, All India Association, United Provinces Pharmaceutical Association (UPPA) registered in December, but the name UPPA was replaced soon by the Indian Pharmaceutical Association in 1936. 1935 में ऑल इंडिया एसोसिएशन, जिसे UPPA भी कहा जाता है, वो रजिस्टर्ड हुआ था दिसंबर में और उसका नाम बहुत जल्दी चेंज होके इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन रखा गया, IPA. In 1940, the government brought drug bill to regulate the import, manufacturing, sale and distribution of drug in British India. This bill was adopted as Drug Act 1940. 1940 में ड्रग बिल को रेगुलेट किया था फॉर इम्पोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन ब्रिटिश इंडिया, एंड दिस बिल को अडॉप्ट कर लिया गया ड्रग एक्ट 1940 में. 1946 में एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया APTI was formed. In 1948 Indian Pharmaceutical Congress Association IPCA in Calcutta was floated,
An Indian Pharmacopoeia Committee was constituted under the chairman of late Dr. B.N. Ghosh. In 1949, the Pharmacy Council of India (PCI) was established. In 1980, establishment of Indian Pharmacy Graduate Association (IPGA) was established. This was all about the history of profession of pharmacy in relation to industry and organization. Thank you.